Hi guys, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for today, that is October 1st. Let's get started with the top stories for today. Okay, so the new Air Force chief has taken over. So the first important update is related to defense, that new IAF chief promises to enhance capabilities. Then about healthcare, Covaxin data is given to WHO for nod. Again, a very interesting basically article on NEET, where overseas citizens of India can appear in general category for this year. Core sector grew 11.6% in August, that is related to economy. We will study about core sector. Then again with international sphere, India, Australia to conclude a free trade pact by end of 2022. That's again a very important announcement. And then a nice article in editorial section, failing on food, about PM Poshan scheme, which we discussed yesterday. Okay, so let's get started with the updates for today. So the new Indian Air Force chief has joined. So the earlier chief was Air Chief Marshal RKS Bhadauria and new chief is Vivek Ram Chaudhary. Okay, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary took over as the 27th chief of Air Staff from RKS Bhadauria. He was the vice chief of Air Staff earlier and now he has taken over, and obviously we expect a lot from our armed forces. We all believe that he will bring laurels to the Indian Air Force. Now the health ministry has announced that Covaxin data has been given to WHO, okay, for approval. Okay, we all know that Covishield has been approved, but Covaxin is yet awaiting approval. So all data for Covaxin clearance has been given to the World Health Organization. It also gives updates related to the current vaccination status in India, where it says that 69% of the population has received the first dose of COVID-19, while 25% has been given both the doses. So we still have a sizable population to receive complete vaccination, and it says that the priority is not about booster doses. The priority is to at least complete the phase 2 vaccination of a large scale of population. It is also says that developing a dengue vaccine is an important agenda for India. So ICMR chief Mr. Balram Bhargav said that developing a dengue vaccine is an important. So we talked about serotype dengue and the prevalence of dengue in a lot of states in India. So again, dengue, apart from, obviously COVID is in limelight and highlight, but we also need to study a bit about dengue also. That can be an important epidemic. Now this is an interesting update. Supreme Court has said that OCI candidates can appear in general category. Now basically there are NRI candidates and there are OCI candidates. Okay. And in this case basically there is a notification which was released earlier, where the Home Ministry had said that for NEET, OCI candidates have to be treated at par with NRI candidates. Now if that would have been the case, then OCI candidates will have to pay a higher fee, similar to the NRI candidates, but they have challenged this notification. So basically the bench was hearing a challenge for this notification issued by Ministry of Home Affairs in March, where they have directed OCI candidates to be treated on par with NRI candidates for the purpose of NEET. Okay, and if the notification would have been successful, then the OCI candidates would have to pay the higher fee paid by NRIs. That's why the notification was challenged. But Supreme Court has said, देखो ये notification क्यों issue किया गया था, पहली बात तो ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि चाहे आप NRI कैंडिडेट ले लो या OCI कैंडिडेट ले लो, दोनों ही फॉरेन सिटीजन्स हैं, बोथ ओव देयर एलिजियंस टू अ फॉरेन कंट्री. ठीक है, तो उन्होंने कहा था जब अल्टीमेटली, एंड देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी, इनफैक्ट जो मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी है वो यही है कि अल्टीमेटली दे विल टेक एजुकेशन फ्रॉम इंडिया एंड अल्टीमेटली सर्व देयर डिफरेंट कंट्रीज. सो व्हाई शुड वी compromise or sacrifice the general category seats for such students, especially in medical services when the country is in crying need of more doctors. So why should we give basically specific treatment for these candidates, OCI candidates को. तो गवर्नमेंट ने कहा कि पॉइंट आपका ठीक है, बट ये सडनली एकदम आर्बिट्ररीली एक साथ इस साल के लिए नहीं हो सकता. अगर आपका इस तरह का कोई प्लान था, इस तरह का कोई नोशन था, यू शुड हैव इंटीमेटेड अर्लियर. तो एटलीस्ट दिस ईयर वी शुड अलाउ देम टू सिट. नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स डेफिनेटली आप OCI और जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनको एक साथ एट पार ट्रीट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दिस ईयर वी शुड नॉट
arbitrarily bar them. Besides, there are not many OCI candidates who are appearing, तो the number itself is not big. तो कुछ 400 स्टूडेंट्स ओवरऑल अपियर करते हैं, फिर उनमें से कितने क्वालिफाई करेंगे, उनमें से कितने मेडिकल स्टूडेंट्स पे पहुंचेंगे, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं. तो गवर्नमेंट ने कहा है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि basically Supreme Court has said that the order allowing the OCIs to compete in the general category was confined to 2021-2022 academic year alone, यानी अगले academic year से ये valid नहीं होगा. The country is known for the spirit of inclusiveness. Besides, the number of overseas citizens of India who had participated in NEET, around 400, was minuscule. Okay, so you need to be clear with the difference between NRI and OCI, है ना. NRI is an Indian citizen residing abroad. OCI is a foreign national of Indian origin who is registered as a OCI card holder under Section 7A of Citizenship Act. तो जब थोड़ा citizenship के बारे में आप पढ़ेंगे Section 7A of Citizenship Act, you will get more clarity on OCI and NRI candidates. चलिए अब इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं. कोर सेक्टर ग्रू इन 11.6% इन अगस्त. देखो ये जो फिगर है 11.6%, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल इसे याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये क्या कहती है, इंडिया कोर सेक्टर आउटपुट एक्सेलरेटेड फॉर अ सेकंड स्ट्रेट मंथ इन अगस्त, राइजिंग 11.6%, बॉयड इन अर्लियर मंथ 6.9 है. ना तो ये 11.6% आपके काम का है, ना 6.9% आपके काम का है. आपके काम के ये दो वर्ड्स है, व्हाट इज कोर सेक्टर एंड व्हाट इज कोर सेक्टर आउटपुट. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इस न्यूज़ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई हैव शॉर्टलिस्टेड दिस आर्टिकल. इट सेज 4 ऑफ द 8 सेक्टर्स रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ. यानी ये जो कोर सेक्टर की बात कर रहा है इसमें कुछ 8 सेक्टर्स होते हैं जिनमें से 4 ने डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर की है. तो व्हाट इज कोर सेक्टर, तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है, तो जैसे आई थिंक आप में से कुछ लोगों से मैंने बात की थी कि इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करती है, उसी तरह से हमारे देश में इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करने के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. तो आईआईपी डेटा भी सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है मंथली. जिस तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा सीएसओ रिलीज करता है मंथली, उसी तरह से आईआईपी का डेटा भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करता है मंथली. अब आईआईपी के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग. जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग. इनके वेटेजेस कितने होते हैं, माइनिंग का 14.3%, मैन्युफैक्चरिंग का 77.7% और इलेक्ट्रिसिटी का 8%. इसमें से भी मैन्युफैक्चरिंग इज सबडिवाइडेड इनटू अराउंड 22 इंडस्ट्रीज. ठीक है, जिसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आईआईपी का डेटा कौन रिलीज करता है, आईआईपी का डेटा किस फ्रीक्वेंसी पे रिलीज होता है. ठीक है, आईआईपी के डेटा में कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, उनमें से किसका कितना वेटेज है, कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना. अब इस पूरी कहानी में कोर सेक्टर कहां से आया, जिसके बारे में हमने न्यूज़ देखी थी, कोर सेक्टर. तो आईआईपी में जो है 8 ऐसी इंडस्ट्रीज होती है या 8 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको मिलाकर के कोर सेक्टर कहा जाता है. 38% वेटेज इस कोर सेक्टर का ही होता है. ठीक है, कौन से 8 सेक्टर्स हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनको कंबाइन करके कोर सेक्टर आउटपुट कहा जाता है. और अभी हम जो बात कर रहे थे वो यही देख रहे थे कि 8 में से 4 सेक्टर्स का जो है आउटपुट डबल डिजिट ग्रो किया है. तो अगर कोर सेक्टर ग्रो करता है, देखो इसको कोर सेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं बाकी सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या बाकी सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. अगर स्टील ना हो तो स्टील से बहुत सारे सेक्टर्स का रॉ मटेरियल स्टील ही होता है. कोल हमारे लिए मेजर पावर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सीमेंट जो है वो पूरा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है वो सीमेंट पे डिपेंडेंट करता है. तो ये ऐसे सेक्टर्स है जिन पे बाकी सेक्टर्स डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको कोर सेक्टर कहा जाता है, इसीलिए इनका वेटेज इतना हाई है. तो आईआईपी का अल्टीमेटली जो दारोमदार होता है वो काफी हद तक कोर सेक्टर पे होता है. तो अगर कोर सेक्टर आउटपुट जंप करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. और अगर कोर सेक्टर वीक होता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो कम है. तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जो आरबीआई के पास हमेशा एक जो डिलेमा होता है कि ग्रोथ वर्सेज इन्फ्लेशन, तो वो ग्रोथ वर्सेज इन्फ्लेशन में दोनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन्फ्लेशन को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं और ग्रोथ के लिए हम इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट की तरफ देखते हैं कि भैया अगर हमारे देश में ऐसा लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट कब बढ़ेगा, जब डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा. और अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा.
अब कोर सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम वेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वेट इन द कोर सेक्टर, ठीक है, फॉलोड बाय स्टील, रिफाइनरी एंड क्रूड ऑयल। तो हमने देखा था वैसे आईआईपी में सबसे ज्यादा वेट किसका था, मैन्युफैक्चरिंग का, और वैसे कोर सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अब देखो इंटरनेशनल स्फेयर में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया है, ठीक है। देखो अभी काफी टाइम से बात चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इनिशियली यूएसए के साथ पीयूष गोयल साहब ने कहा था कि हम यूएस के साथ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, बट यूएसए इज नॉट इंटरेस्टेड, हमने उसके बारे में बात की थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम से बात चल रही थी, फाइनली एक अनाउंसमेंट आ गया है। अनाउंसमेंट क्या है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्रीड टू कंक्लूड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2022। तो बाय द एंड ऑफ 2022 वी विल बी एंटरिंग इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच विल एक्सपेक्टेडली डबल द बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 26 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो उन्होंने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू अभी आज की तारीख में जो हमारा 26 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है, इसको हम डबल कर पाएंगे, 52 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इंटरिम एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड बाय दिस क्रिसमस, यानी 25 दिसंबर, यानी इस दिसंबर तक हम इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल कर देंगे, जिसको हम अर्ली हार्वेस्ट स्कीम भी कहते हैं, और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल बी एबल टू गेट इनटू अ फुल फाइनल अग्रीमेंट, विच इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिहाज से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। A free trade agreement is a pact between two or more nations to reduce barriers to imports and exports among them. Basically, ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए ज़्यादा इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, टैरिफ कम किया जाता है, कोटाज, सब्सिडीज, इस तरह के जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन सबको हटाया जाता है, ताकि जो इंसेंटिवाइज हों इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशन ज़्यादा बढ़ें। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अभी ये फाइनल हुआ है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशन। तो अब हम जब कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब हम ट्रेड को ओपन कर रहे हैं, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मतलब हम बेसिकली ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज बेसिकली टू लिबरलाइज ट्रेड। तो ये एक और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अपन ने इस बहाने समझा। पहले हमने बात की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोर सेक्टर की, और आज हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो इसी तरीके से बैकग्राउंड को समझा जाता है, ठीक है, न्यूज़ के साथ साथ हम उसका बैकग्राउंड भी एक्सप्लोर करें। अब हम एडिटोरियल पे बात करते हैं, फेलिंग ऑन फूड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी नाइस आर्टिकल। फेलिंग ऑन फूड इज अबाउट पीएम पोषण स्कीम। तो कल हमने बात की थी कि जो मिड डे मील स्कीम है उसको रीब्रांड किया जा रहा है, और उसको नया नाम दिया गया पीएम पोषण स्कीम। पोषण अगेन स्टैंड्स फॉर पोषण शक्ति निर्माण। इस तरीके से उसका रीब्रांड किया जा रहा है, और उसमें थोड़े एक्सटेंशंस भी किए गए हैं, स्कीम में थोड़े बहुत ट्वीक्स भी किए गए हैं, कुछ एडिशंस भी किए गए हैं। तो पीएम पोषण स्कीम के बारे में आर्टिकल है, और ये बताता है कि बेसिकली पहली बात कि उसकी नीड क्या है, दूसरी बात कि उस स्कीम के फीचर्स क्या हैं, और तीसरी बात कि उस स्कीम के आगे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगेन इट्स अ वेरी नाइस आर्टिकल, थोड़े बहुत और फैक्ट्स भी हमें देता है, तो दैट्स वाई इस आर्टिकल को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। तो ये कहता है कि पीएम पोषण स्कीम, जैसा मैंने कहा कि 5 साल के लिए इसका अप्रूवल हो गया है, कल भी हमने बात की थी, अंटिल 2005-2026 इसको अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और ये कहता है कि ये ऐसे टाइम पे आया है जब हमारे देश में बहुत समस्या है, पेंडेमिक का माहौल है, रियल इनकम्स काफ़ी लोगों की डिक्लाइन हो गई है, और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है बिकॉज ऑफ रियल इनकम डिक्लाइन। तो अभी इन्होंने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट्स आई है वो भी बहुत डराने वाली है। वो ये कहती हैं कि चाइल्डहुड स्टंटिंग रोज इन 13 स्टेट्स। तो चाइल्डहुड स्टंटिंग मतलब लिमिटेड ग्रोथ रोज इन 13 स्टेट्स। एनीमिया का हाई प्रेवलेंस है, एनीमिया मतलब ब्लड में आयरन की कमी, अगेन बहुत हाई प्रेवलेंस है अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड वुमेन। एंड वेस्टिंग वाज अ सीरियस कंसर्न इन 12 स्टेट्स। वेस्टिंग अगेन जहाँ पे आपके मस्कुलर और बॉडी में वीकनेस आ जाती है, आप इमैशिएट हो जाते हो, तो वो भी 12 स्टेट्स में। यानी बेसिकली मैल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छी खासी हाइट पे। और मैल न्यूट्रिशन को देखो, जो मिड डे मील स्कीम है वो बेसिकली उसके 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। एक कि एनरोलमेंट स्कूल्स में बढ़ाना, कि इस बहाने ज़्यादा बच्चे एडमिशन्स लें। दूसरा मैल न्यूट्रिशन को फाइट करना। तो ये क्या कह रहा है कि मैल न्यूट्रिशन लगभग ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। ऐसे समय में रियल इनकम डिक्लाइन हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो इट इज़ अ वेरी मच नीडेड काइंड ऑफ अ स्टेप विच द गवर्नमेंट हैज टेकन। अब गवर्नमेंट ने इसमें क्या अनाउंस किया है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हॉट मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ऑब्वियसली दिस इज प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, नॉट इन प्राइवेट स्कूल्स, which will cover 11.8 crore children, will be supplemented with nutritional elements in identified aspirational districts and areas with high anemia। तो इसमें क्या होगा,
उन एरियाज़ में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जहाँ पे एनीमिया के केसेस आए हैं वहाँ पे एडिशनल न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाएगा। एंड स्कीम विच इज़ प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जो अगले साल से इसमें बाल वाटिकास को भी इंक्लूड किया जा रहा है, प्री प्राइमरी चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इट प्रोवाइड्स फॉर सोशल ऑडिट, तो स्कीम का प्रॉपर सोशल ऑडिट होगा, एनजीओज कैन ऑडिट, क्रिएशन ऑफ स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एस्पेक्ट और भी ऐड किया गया कि स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाया जाए, लोकल प्रोड्यूस लिया जाए, ताकि जो मिड डे मील भी बनाई जा रही है उसको आप अपने आसपास की चीज़ें उनसे उगाएं और उनसे बनाएं, ठीक है। टू सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफपीओज एज प्रोवाइडर्स एंड ले एम्फेसिस ऑन लोकल फूड ट्रेडिशंस। तो ये सब चीज़ें सोची गई हैं। आई डोंट नो ऑन द ग्राउंड कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल हो पाएगी, बट बेसिकली जो फोकस है कि एक तो ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, दूसरी बात न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाया जाए। ये मुझे दो मोटे इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट लगे। तो वाइल दीज आर पॉजिटिव फीचर्स, बट जो अल्टीमेटली जो सक्सेस डिपेंड करेगी वो होगी एनुअल बजटरी आउटलेस, कि आप एक्चुअली इसके लिए कितना पैसा डाइवर्ट कर पाते हो। और दूसरी बात कि इसका आउटकम हम मेजर करें कि उससे बेसिकली मैल न्यूट्रिशन किस हद तक कम हो सकता है। तो सपोर्ट फॉर पीएम पोषण हैज बीन अप्रूव्ड ओवर द 5 ईयर पीरियड एट 1,39,794 करोड़। तो मैंने आपको बताया था 1,31,000 करोड़ के आसपास का आउटले है, जिनमें से 31,000 करोड़ स्टेट से एक्सपेक्टेड और 1 लाख करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई पहली बात तो आपके बजटरी आउटलेस जो है वो कम नहीं पड़ने चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि इस स्कीम में जो कुछ चीज़ें कंबाइन भी की गई है, जैसे सक्षम आंगनबाड़ी मिशन पोषण 2, जिसमें आपने पोषण अभियान के साथ कवर किया है आंगनवाड़ी को, क्रेचेस को, एडोलेसेंट गर्ल्स को। तो उन्होंने कहा जब आप कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ रहे हो तो उनसे जो आपने अलग अलग कंपोनेंट्स है, अल्टीमेटली जो आपका आउटकम है, ऐसा नहीं हो कि आपने 4 स्कीम्स को जोड़ तो दिया बट 4 स्कीम्स के बजाय आपका जो आउटकम अल्टीमेटली बजटरी आउटले है वो 3 स्कीम्स इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो बजटरी आउटले वो कम नहीं होना चाहिए, पैसा जो स्कीम के लिए है वो कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि न्यूट्रिशनल प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूट्रिशनल प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, जब आप खाने का प्लान कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी को मीट किया जा सके और मेल न्यूट्रिशन को फाइट किया जा सके। तो आप क्या खिला रहे हो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने बताया पिछले बार पेंडेमिक में और पेंडेमिक के बाद की सिचुएशंस में जो मिड डे मील के लिए जो फूड और टेक ऑफ था वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो जितना ग्रेन उठना चाहिए था उतना उठा नहीं है, एंड दिस शुड रिंग अ अलार्म बेल। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि मिड डे मील उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या इससे देश के न्यूट्रिशनल लेवल पे फर्क पड़ेगा, क्या बच्चों के न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट लाइन क्या कहते हैं, फ्यूचर ऑफ अ जनरेशन ऑफ इंडियन इज एट स्टेक। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसा हमने देखा कि 11.8 करोड़, इट्स अ वेरी बिग नंबर। इतने सारे बच्चे को अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके खाने में कमी हो रही है, उनको स्कूल तक मिड डे मील नहीं पहुंच पा रही है, तो देन ऑब्वियसली द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज एट स्टेक एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमने बात की आज की स्टोरीज की। अब कुछ Q&A राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे और कल मैंने आपसे पूछा था पीएम केयर्स फंड के बारे में, एक अच्छा एडिटोरियल आया था और मैंने आपसे पूछा था कि पीएम केयर्स फंड कब शुरू हुआ। कुछ लोगों ने उसका आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है, मार्च 2020 पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई थी। अब आज हमने इंडियन एयर स्टाफ की बात की कि चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ के बारे में बात की कि ही इज बिकम विवेक राम चौधरी हैज बिकम द नेक्स्ट और लेट्स से द करेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। अगेन आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। आई विल गो थ्रू इट एंड रिस्पॉन्ड टू यू टुमारो। देखो काफ़ी लोग इसको रेगुलरली कमेंट सेक्शन पे आंसर्स दे रहे हैं और इट्स अ नाइस थिंग, यू नो। आई फील हैप्पी अबाउट पीपल interacting, people responding. It's a good habit and I personally believe that this adds certain value not only to this series, ठीक है। जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसको भी कुछ वैल्यू ऐड करता है, बट आप लोग भी जो एफर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, कुछ कमेंट्स में अपने आंसर्स दे रहे हैं। और जब मैं ओवरऑल कमेंट स्पेस देखता हूँ तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट पीपल आर वर्किंग विद मी। दैट्स व्हाट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि जब हम काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो ये एक मूवमेंट की तरह होना चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारा रिसर्च चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे हमारे नोट्स चल रहे हैं, ठीक है। एंड ओनली देन वी कैन अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव, है ना। तो चलो, कीप डूइंग, कीप रीडिंग एंड गुड बाय, टेक केयर।